ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اس لیے کہ خدا تو بھلا ہے اور تیری قدرت اور تیرا جلال ہزاروں اور لاکھوں پر ہے۔ اے باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع کے لیے، تیرے پاک نور کے لیے جو ہمارا مددگار ہے اور ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اے باپ، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تیرے کلام کے لیے کہ خداوند تیرا کلام ہمارے قدموں کے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ اے خداوند، ملک ملاتا ہے اور گھاس پرچاتی ہے، لیکن تیرا کلام ازل سے ابد تک قائم رہتا ہے۔ بے شک آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن یسوع تیرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اے باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے کلمہ کے لیے، تیرے کلام کے لیے جس کے اندر زندگی پائی جاتی ہے، اور دعا کرتے ہیں جب ہم تیری آواز کو، کلام کو سنتے ہیں تو دیکھ خداوند ہمیں سننے والے کان اور قبول کرنے والا دل عطا کرنا، تاکہ تیرے کلام کے مطابق زندگیاں بسر کریں اور تیرا نام عزت اور جلال پائیں، یسوع کے نام سے آمین۔ آئیے خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا باب نمبر 6 آیت نمبر 1 سے ہم خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ اور ان باتوں کے بعد یسوع گلیل کی جھیل یعنی تربیاس کی جھیل کے پار گیا اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، کیونکہ جو موت سے وہ بیماروں پر کرتا تھا ان کو وہ دیکھتے تھے۔ یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا، اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ پس جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے، تو فلپس سے کہا کہ ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں؟ مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا۔ آیت نمبر 7 میں لکھا ہے، فلپس نے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں، کیا ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے؟ اس کے شاگردوں میں سے ایک نے یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا، یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہے؟ یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت گھاس تھی۔ پس وہ مرد جو تخمیناً 5000 تھے بیٹھ گئے۔ یسوع نے وہ روٹیاں لی اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دی، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا۔ جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے جمع کیا، اور جو کہ 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھری، پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا اور اس کا قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ سب کہیں آمین۔ ہالیلویا۔ آج ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا باب نمبر 6۔ پچھلے اتوار ہم نے لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 13 آیت نمبر 23 سے پڑھا تھا تنگ دروازے کے بارے میں، لیکن آج جو معجزہ ہم یسوع مسیح کا دیکھنے کو ہے کہ کس طرح خداوند نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا۔ آمین۔ یہاں پر کلام میں لکھا کہ تقریباً 5000 صرف مرد تھے، لیکن ان کے سے کچھ عورتیں بھی تھیں، کچھ بچے بھی تھے۔ اگر ان کی تعداد بھی لی جائے تو کافی لوگ بن جاتے ہیں۔ آمین۔ اور کلام حق میں لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد یسوع گلیل کی جھیل یعنی تربیاس کی جھیل کے پار گیا، اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، کیونکہ جو موت سے وہ بیماروں پر کرتا تھا ان کو وہ دیکھتے
यीशु शहर शहर, गांव गांव और पहाड़ पर, और यहाँ तक हम देखते हैं कि यीशु जो हैं वो हैकल में भी जाते थे ताकि खुदा की आवाज़ को, खुदा के कलाम को लोगों के साथ क्या करें, बयान करें। आमीन। अब यीशु गलील की झील के पास है और कलाम में लिखा है कि लोग जो हैं वो उसके पीछे आते थे ताकि उसके मौजज़ात को देखें कि किस तरह वो मौजज़े करता है, किस तरह वो बीमारों को शिफा देता है, किस तरह वो बुजुर्गों को निकालता है, किस तरह वो मुर्दों को जिंदा करता है। और जब खुदावंद यीशु कलाम की मुनादी करता तो हजारों की तादाद में लोग जो थे वो जमा हो जाते थे, और इनमें से ऐसे भी लोग थे जो सिर्फ खाना खाने के लिए आते थे। आमीन। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो खाने की तलाश में हैं ताकि हमें अच्छी खुराक मिल जाए, ताकि हम खुदावंद के पास नहीं बल्कि हम मेहनत करें और अच्छा खाना खाएं। लेकिन जो शख्स खुदा के पास आता है, खुदा के सामने झुकता है, खुदा उसे रूहानी नेमत के साथ साथ जिस्मानी नेमतों से भी क्या करता है, मालामाल कर देता है। आमीन। आमीन। कलाम में लिखा है कि पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। तो सबसे पहले हमने खुदा की बादशाही की, खुदा की रास्तबाजी की, खुदा के कलाम की क्या करनी है, तलाश करना है। ज़बूर में बड़ी खूबसूरत बात है कि फूल कमलाता है और घास मुरझा जाती है, लेकिन खुदा का कलाम जो जिंदगी की रोटी है। यीशु ने क्या कहा, उसने कहा उनसे कि तुम्हारे बाप दादा ने इस बियाबान में खाया और खाकर क्या हुए, मर गए। मैं वो रोटी हूँ जो आसमान से उतरती हूँ, जो कोई भी इस रोटी में से खाएगा वो कभी ना मरेगा बल्कि अब तक क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। और यीशु ने कहा कि मैं जिंदगी की रोटी हूँ। आमीन। हालेलुया। और कलाम में लिखा है कि जब यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठा था और यहूदियों की ईदे फिसाम नजदीक थी। ईदे फिसाम वो ईद है जिसमें वो कुर्बानी करते और वहां पर बरा को कुर्बान करते, अपने घरों के दरवाज़ों पर क्या करते, उस याद में जो मूसा ने जब वो मिस्र में थे तो खून लिया और अपने घर के दरवाज़ों की चौखटों पर लगाया और उनके जो पलौठे थे वो बच गए। और उसके बाद उन्हें ईद फिसार है वो बनाते हैं। और इसी तरह कलाम लिखा कि यहूदियों की ईद फिसार नज़दीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है। आमीन। एक बड़ी भीड़ जो थी, जो मुख्तलिफ लोगों को कैटेगरी की थी, जिनमें कुछ मौज़ात देखने आए थे, कुछ यीशु की तालीम सुनने आए थे, कुछ यीशु को देखने आए थे, कुछ हजूम को देखने आए थे कि किस तरह लोग जमा हैं, क्यों जमा हैं, कुछ बीमारों को शिफा पाते देखने आए थे, और कुछ ऐसे थे जो खाना खाने आए थे। सब लोगों की यीशु जो था वो जरूरतों को पूरा करता था। कोई मौजा देखने आता, यीशु से मौजा दिखाता। कोई बीमार शिफा पाने आता, यीशु उसको शिफा देता। कोई यीशु को देखने आता, यीशु अपना चेहरा मुबारक उसे क्या करता, दिखाता। कोई यीशु को छूने आता, यीशु से छूने देता। और कुछ खाना खाने आते तो यीशु ने खाने के लिए भी देता। लेकिन इस मौजे में एक बड़ा सबक है कि यीशु ने जब देखा तो यीशु ने उन्हें आजमाने के लिए जो 12 रसूल, जो 12 शागिर्द खुदावंद के साथ रहते थे, उनमें से यीशु ने एक से कहा, किससे कहा, फिलिप्पस से। कलाम में लिखा कि जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल लें। अब यीशु जिसने बियाबान में इस्राएलियों को खाना खिलाया, अब वो फिलिप्पस से पूछ रहा है आजमाने के लिए कि फिलिप्पस
ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہم ان کے لیے روٹیاں کہاں سے لیں؟ لیکن فلپس نے کیا کی؟ اس نے جسمانی بات کی یسوع سے. اس نے کہا کہ خداوند ہمارے پاس 200 دینار ہیں، کیا ہم تھوڑی سی روٹیاں لیں اور تھوڑی تھوڑی ایک ایک ٹکڑا ہی دے دیں؟ یسوع ان کے ایمان کو چیک کر رہا تھا. آج بھی خداوند ہمارے ایمان کو چیک کرتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. وہی نعرہ روٹی، کپڑا اور مکان، اس کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں. زبان کا لذت کے تلاش میں، کھانے کی تلاش میں. تو یسوع نے بھی ان سے کہا، کیا کہا؟ آیت نمبر 35 میں لکھا ہے کہ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے، تو فلپس سے کہا کہ ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں؟ مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا. کیوں کہا؟ قادری کیا سی؟ ذرا اچھی بولو بھائیو. ہاللیلویا. کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا. بعض دفعہ ہم کچھ اور سوچتے ہیں، ہم خدا سے کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، لیکن خدا نے ہمارے بارے میں کچھ اور سوچا ہوتا ہے. فلپس نے اس سے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ایک کے لیے کافی نہ ہوگی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے گی. اور کلام میں لکھا ہے کہ یسوع کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد جس کا نام شمعون پطرس تھا، اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام اندریاس ہے. اب پطرس کا بھائی جو اندریاس ہے، اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یسوع کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. ایلیا خدا کا منصوب، خدا کا نبی. تو ایلیا نے جب بیوہ کے پاس گیا تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ان کے روٹی اور کیا کیا؟ تیل کو جو ہے وہ برکت دی. ایلیا نے الیشا نے. تو اسی طرح جو یسوع ہے، اندریاس نے یہ سوچا کہ یہاں پر ایک لڑکا ہے جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں. آمین. اب اندریاس نے یہ سوچا اور یسوع کو بتایا کہ خداوند اتنی بڑی بھیڑ ہے، یہاں پر ایک بچہ ہے جس کے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ 5 روٹیاں اور. اب وہ اندریاس دوڑ کر اس بچے کے پاس کیا ہوگا؟ اس سے کہا ہوگا، بیٹا یہاں پر خداوند ہے اور خدا چاہ رہا ہے کہ تم اپنی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں جو ہے وہ یسوع کو دو. اگر جے وہ بیٹا ہوندا ساڈے ورگا تو کیا دیتا؟ اس کے پاس بھی وہی روٹیاں اور 5 مچھلیاں، 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں. اگر وہ دے دیتا، اگر بے ایمان ہوتا، اگر ایمان نہ رکھتا، اگر بے ایمان ہوتا تو اس نے کہنا تھا، بچہ تھا، ضد بھی کر سکتا تھا کہ بھائی میں تو تھا، جاؤ خریدو. لیکن اس بچے نے یسوع پر ایمان رکھا. ہاللیلویا. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس باقی صاحب یہی ہے، ایک چیز سے گزارا کرنا. اگر تو اسی اگے بچے ہوانگے تو ساڑھے تو کچھ نہیں رہے گا. اس موضوع میں یسوع سپر نیچرل طور پر ہمیں یہ بھی سمجھانا چاہتا ہے کہ یسوع تھوڑے کو زیادہ کر دیتا ہے. آمین. خداوند غریب لوگوں کو امیر کر دیتا ہے. مصر میں غلام تھے، جب خدا نے ان سے کلام کیا اپنے بندہ موسیٰ سے، تو خدا نے جب وہ نکلنے لگے تو کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے مصریوں کو لوٹ لیا، ان کا سونا لوٹ لیا، ان کا اناج لے گئے، ان کے مویشی لے گئے، اور خدا نے غریبوں کو کیا کر دیا؟ امیر کر دیا. جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں
تو خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ برکت دیتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. ہم ایک خاندان میں وزٹ کر رہے تھے تو خاندان کے سارے لوگ جو تھے وہ کام کرتے ہیں تو چرچ میں نہیں آتے. میں نے ان سے کہا کہ آپ چرچ آئیں تو اتنی مشقت، اتنا کام، اتنا بوجھ، اتنا قرضہ ان کے اوپر ہے، لیکن وہ ہم نے دعا بھی کی لیکن وہ خدا کے پاس نہیں آنا چاہتے. اگر ہم دنیا میں محنت کرتے رہیں گے، دنیا کے کام کرتے رہیں گے اور خدا کے پاس آئیں گے تو ہم نہ روحانی طور پر برکت پا سکتے ہیں اور نہ جسمانی طور پر. خدا نے تو اسرائیل سے وعدہ کیا کہ تو قرض لے گا نہیں بلکہ دے گا. خدا نے مسیحوں سے بھی وعدہ کیا تو قرض لے گا نہیں بلکہ دے گا. اور کون دیں گے؟ جو یسوع کی تعلیم پر عمل کرتے ہوں گے. یوحنا کے انجیل میں یسوع نے کیا کہا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. فیس بک تے پاویں چلانا ماری جاؤ تو پاویں لٹیاں پائی جاؤ تو جنہ چکر خدا نال نہیں چلیں گے خدا برکت نہیں دے گا. تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. یہاں پر کلام میں لکھا ہے فلپس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوگی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے. اس کے شاگردوں میں سے ایک نے یعنی یوحنا پطرس کے بھائی اندریاس نے اسے کہا یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کہ 5 روٹیاں 2 مچھلیاں مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا؟ ہاللیلویا. آئیے کلام میں دیکھیں آیت نمبر 10 میں یسوع نے ان سے کہا کہ ان لوگوں کو بٹھاؤ. اور اس جگہ بہت گھاس تھی. پس وہ مرد جو تخمیناً 5000 تھے بیٹھ گئے. یسوع نے وہ روٹیاں لی اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دی. جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو. ہاللیلویا ہاللیلویا. چھوٹے لڑکے نے کیا کی؟ اپنی 5 روٹیاں 2 مچھلیاں خداوند کو دی. اور کلام میں کیا لکھا ہے کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا. اس نے ایمان رکھا، اندریاس نے ایمان رکھا. اس نے یسوع کو بتایا. یسوع سب کو چیک کر رہا تھا. یسوع فلپس کو بھی چیک کر رہا تھا. یسوع اس ہجوم کو بھی چیک کر رہا تھا. وہ ہجوم یسوع کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا اور یسوع کو بھی پتا تھا یہ بھوکے ہیں. تو جو خدا کے پاس آتا ہے خدا سے روحانی اور جسمانی نعمتوں سے کیا کر دیتا ہے؟ مالا مال کرتا ہے. جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا. خدا خوشی سے دینے والوں کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. اب یہ بچہ کتنا خوش ہوگا جب اس نے اپنی روٹیوں کو دیکھا ہوگا کہ اس کی روٹیوں سے بہت سارے لوگوں نے کیا کی ہے؟ برکت پائی ہے. بہت سارے لوگوں نے اس کی مچھلیوں میں سے کھایا ہے. تو کیا جب اس نے یہ کام کیا ہوگا تو خدا نے اس بچے سے نہ کہا ہوگا کہ اس سے میں برکت دوں گا. خدا یسوع نے جب اس نے اسے دیا ہوگا تو یسوع نے اسے بھی برکت دی ہوگی. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور کلام اس طرح 28 میں لکھا ہے کہ جو حکم آج میں تجھے دیتا ہوں نہ تجھ سے دائیں مڑنا اور نہ تجھ سے بائیں مڑنا. تو دم نہیں بلکہ تو سر ہے. تو آتے اور جاتے تو مبارک ہوگا. تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی مبارک ہوگی. آسمان جو اس کا اچھا خزانہ ہے وہ اپنے خزانے کو تیرے لیے کھول دے گا. تیرے ہاتھ مٹی کو لگیں گے اور مٹی سونے کی قیمت ادا کرے گی. لیکن جاں فشانی کر اور تنگ دروازہ سے داخل ہو. تنگ دروازہ کیا ہے؟ خدا کا حکم ہے. وہ حکم جس کا موسیٰ نے اخروج 20 میں حکم دیا اور یہ برکت دینے سے پہلے موسیٰ نے ان سے کہا کہ نہ تو سے دائیں مڑنا اور نہ تو سے بائیں. ہاللیلویا ہاللیلویا
हालेलुया। आइए खुदा के कलाम में से, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा आपको जिस्मानी और रूहानी नेमतों से माला माल करे, तो अपना आप खुदा को दें। आप अपना वक्त खुदा को दे सकते हैं, अपना पैसा खुदा के काम में लगा सकते हैं, अपनी कुव्वत खुदा के काम में लगा सकते हैं। आपको खुदा ने अक्ल जो हिकमत दी है वो आप खुदा के कामों में सर्व करेंगे, तो खुदावंद आपको जिस्मानी और रूहानी नेमतों से माला माल कर देगा। आमीन, हालेलुया। आइए खुदा के कलाम में लिखा है, बस जो मोजा उसने दिखाया, आयत नंबर 14 में, बस जो मोजा उसने दिखाया वो लोग उससे देख कर कहने लगे, ये नबी जो दुनिया में आने वाला था फी अल हकीकत यही है। बस यीशु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। आमीन। रोटी खाती तो की करने लगे, बादशाह बनाने लगे। जब तक रोटी खाते रहते हैं, खुदावंद बहुत अच्छा है, खुदा बहुत भला है। जैसे ही हालात खराब हो जाते हैं तो बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। हमने हालात अच्छे हों, हालात बुरे हों, हमने खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करना है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है आयत नंबर 11 में, यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके इन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। हालेलुया। जब भी रोटी खाएं तो खुदा का क्या करें? शुक्र करें। कितने लोग शुक्रिया अदा करते हैं? कितने लोग 3 टाइम शुक्रिया अदा करते रोटी खाने गए? अगर नहीं करते हैं तो आज का कलाम है, जब भी रोटी तोड़ें तो खुदा का क्या करें? की अदा करें कि भाई शुक्रिया अदा करें। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है कि उसने रोटियां ली और शुक्र करके इन्हें जो बैठे थे बांट दी। आमीन। तो हमने भी खुदा का शुक्र करना है। हम में से कौन ऐसा है? कलाम में लिखा है कि इन्होंने एक दिन रोटी खाधी, रोटी खा के फिर की है, यीशु पहाड़ तक गया, पहाड़ तो आया, उस तो बाद देखा कि वो कश्ती से बैठा, कश्ती से बैठ के फिर दूसरे इलाके से गया चला। तो जिन्होंने रोटी खाई वो क्या चाहते थे? यीशु को बादशाह बनाना। आमीन। एक दिन रोटी खाधी तो की करन दे? यीशु ਨੂੰ कह दे इन्हों सी बादशाह बनावांगे। ताड़े च कोई ऐसा है जिसने कभी भूखा रात को सोया? सारे रोटी खाते, तुसी रोज़ रोटी खाते ना, तो जेडे रोज़ रोटी खाएंगे तो उन्होंने की करना चाहिए? यीशु ने उन्होंने यीशु को अपना खुदावन कबूल करना चाहिए। हालेलुया। जेड़ा जेड़ा रोटी खाना, जो भी तुसी रोटी खाओगे तब यह गल का एहसास होना चाहिए कि यीशु हमारा खुदावन है, यीशु हमारा मुहैया करने वाला है, यीशु यहोवा यरी का बेटा है। आमीन। जो मुहैया करता है। यीशु ऐसा है जो बियाबान में पीने के लिए पानी मुहैया करता है। यीशु ऐसा है जो बियाबान में अनाज दे देता है अपने लोगों को। हालेलुया। तो हमने खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है, वो चीज़ें खानी है जिसके बारे में कलाम कहता है। आमीन। कलाम में यीशु असल जो ज़िंदगी की रोटी है वो क्या है? किसी को पता है? यीशु है। और क्या है ज़िंदगी की रोटी? कौन है भाई? यीशु कौन? खुदा का कलाम। आइए मेरे साथ कलाम से देखें आयत नंबर 32 को, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील बाब नंबर 6 में से ही आयत नंबर 32 को देखें। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। क्या कहता हूँ? सच कहता हूँ। यीशु ने क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि बार बार शक करते थे,
बार बार हवाले च लिखा कि मैं तुमसे सच कहता कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। केड़ी रोटी? हकीकी रोटी कहाँ से आती है? और कलाम में लिखा है हर एक अच्छी बख्शिश जो है वो आसमान से आती है। तो खुदा का खजाना कितने कलाम के मुताबिक? आमीन। कलाम में लिखा कि मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। खुदा की रोटी क्या करती है? दुनिया को। उन्होंने उससे कहा ऐ खुदावंद ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। हालेलुया। केड़ी रोटी हमेशा दिया कर? और रोटी केड़ी है? नहीं, जिंदगी बख्शते आ नहीं, रोटी केड़ी है? यसू ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਇਬਤਦਾ में कलाम खुदा के तशगीद की कहते। उन्होंने उससे कहा ऐ खुदावंद ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। कितने लोग हमेशा रोटी खाना चाहते हैं? अगर किसी ने यीशु से मिलना है, कौन कौन यीशु से मिलना चाहता है? एक भाई कहता मैं एक गीत बनाया मुझे यीशु के पास जाने दो। मैं कहा यार तेनू किने रोके जा फिर हैं। एक दूजा तरीका यीशु ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਕੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। एक और तरीका है, अगर किसी ने यीशु को चलता फिरता और यीशु से बातें करनी है तो खुदा के कलाम को खोले, इसमें यीशु आपको चलता फिरता नजर आएगा। आमीन। शागिर्दों ने उसे कहा ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यीशु ने क्यों की जवाब दिया? यीशु ने उनसे कहा जिंदगी की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। इन्होंने की किया 5000 ने इन्होंने ये किया जो यीशु कश्ती तो भी लंघ गया, फिर इन्होंने भी कश्तियां लिया। इन्होंने कहा रोटी चंगी मिलती, चलिए पीछे निंदा पाइए ना पाइए रोटी तो खावांगे, चलो रोटी सही मुफ्त दी। तो ये यीशु को ढूंढते हुए उसके पीछे गए। आइए मैं आपको हवाला देता हूँ आज नंबर 22 में इसी चैप्टर के। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहाँ एक के सिवा और कोई कश्ती ना थी, और यीशु अपने शागिर्दों के साथ कश्ती पर सवार ना हुआ था, बल्कि सिर्फ उसके शागिर्द चले गए थे। लेकिन बाज़ छोटी कश्तियाँ तरबियात से उस जगह के नज़दीक आए जहाँ उन्होंने खुदावन के शुक्र करने के बाद रोटी खाई थी। बस जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है ना उसके शागिर्द हैं, तो वो खुद छोटी कश्तियों में बैठकर यीशु की तलाश में कफरनहूम को आए। हालेलुया। जो फिर पीछे गए फिर यीशु ने इन्होंने खान नहीं दिता सी। हालेलुया। कितने लोग कलाम खोल दे। आमीन। तो हमने यीशु की इसलिए तलाश नहीं करनी कि असली जिस्मानी रोटी की तलाश करिए, बल्कि हमने रूहानी चीज़ों के ख्याल में रहना है। कलाम में लिखा है जिस्मानी लोग रूहानी लोग थोड़ा या ही लोग तालियां मारो जरा एक्टिव हो। तो दोबारा बोलो, ये आप बड़ी दफा की बोली जिस्मानी लोग और रूहानी लोग। तुम जिस्मानी नहीं तुम रूहानी हो, बशर्तिया के खुदा का रूह तुम में बसा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। तो कलाम में लिखा है यीशु ने उनसे कहा जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा, जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। आमीन। आयत नंबर 48 में लिखा है जिंदगी की रोटी मैं हूँ, तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे।
हालेलुया। जेड़ा रोटी खाएगा, यीशु ने की क्या, मरेगा नहीं। जिसने कहा कि अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया तुम कियो, तुम क्या हो, हाँ जी पाक हो। भाई इसमें जोरदार तालियां। तो कलाम की फर्ज करना पड़ेगा। कलाम लिखा कि अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया तुम पाक हो, तुम मुझ में, मेरी बातें तुम में कायम नहीं, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे वास्ते हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से जाहिर होता है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, और बल्कि जो रोटी मैं जहां की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी वाला पढ़ेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे। कलाम में लिखा है, ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यहूदियों ने क्या, ऐ बंदा कितना अपना गोश्त दे सकता है। मुकाशफा, द रेवोल्यूशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब तक मुकाशफा जिंदगी में ना होगा, ना हम यीशु को जो रोटी कह रहा है अपने आप को, उसे हम समझ नहीं सकते। मुकाशफा यह है जिससे हम यीशु को खुदा कहते हैं। यही वो मुकाशफा है जिससे हम कहते हैं खुदा बाप और बेटा और रूह कुदूस। और एक खुदा की तीन शख्सियत को हम मानते हैं। अगर हमारे पास रेवोल्यूशन नहीं है तो हम कलाम को समझ नहीं सकते। यहूदियों ने भी इससे कहा, बस यहूदी आपस में ये कहकर आपस में झगड़ने लगे। तो यीशु ने आया क्या था कि है लड़न आपस से लग गया, मारो इन्हों। वो दूसरा कहता तू पत्थर फाटो, कहता तू फाट। क्यों ये कह के कहने लगे, ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। क्या कहता हूँ? फिर उन्हें अभी गल की, तुसी मनो ना मनो। फिर कहता यीशु कहता, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं। कितने मुंह की गल है। यीशु ने की क्या, जिदों तक तुसी मेरा गोश्त नहीं खाओगे, मेरा खून नहीं पियोगे, ताड़े अंदर जिंदगी नहीं आएगी। हालेलुया। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। हालेलुया। बड़ा बड़ा वादा कर दिता यीशु ने। की वादा किया? एक तो जिहड़ा जिंदा वा, जो यीशु मसीह का खून पीएंगे तो गोश्त खाएंगे तो लिखा वो हमेशा की जिंदगी पाएंगे। तो जिहड़े मार जाएंगे वो खून तो गोश्त खा पी के, तो जो आखिरी वक्त आएगा एक वादा कर देता है। की वादा करता है? क्योंकि मेरा गोश्त भी कलाम में लिखा है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त भी अलहकीकत खाने की चीज और मेरा खून भी अलहकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह मैं भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं खाया और मार गए। ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और इसका कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो सके। आमीन। यीशु ने 2 रोटियां
दे दिया, एक जिस्मानी रोटी और एक रूहानी रोटी। पहले जिस्मानी रोटी दी थी तो क्या हुआ, वो जिस्मानी रोटी ढूंढना फिरना शुरू कर दी, लेकिन यीशु ने सच्चाई बताई कि मैं जिंदगी की रोटी हूँ। फिर उसने कहा कि ये वो रोटी है जो मेरा गोश्त है, जो मैं तुम्हें देता हूँ, जो भी इस रोटी में से खाएगा वो कभी ना मरेगा बल्कि हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। जो मेरे खून में से पिएगा, रोटी में से और उस गोश्त में से खाएगा, जब आखिरी दिन आएगा तो मैं उसे फिर जिंदा करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कुदरत वाला खुदा है, आमीन। यीशु ने लाजर को जिंदा किया, आमीन। यीशु ने नैनवा शहर के बेवा जो थी उसके इकलौते बेटे को क्या किया, जिंदा किया। और भी बहुत सारे मुर्दों को यीशु ने जिंदा किया होगा। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि अगर सारे मौजज़ात बाइबल मुक़द्दस में लिख दिए जाते तो हमारे पास बहुत बड़ी किताब होनी थी। तो यीशु आज भी मौजज़ात करता है, आज भी वो मुर्दों को जिंदा करता है, आज भी वो बीमारों को शिफा देता है, आज भी वो बदन के अज़ा को नया कर देता है, आज भी वो हमारी ज़िंदगी में अपने जलाल को, अपनी कुदरत को अंडेर देता है, आमीन, हालेलुया। तो हासिल कलाम क्या है, कोई बताएगा? कड़िया गल्लां सी सीखियां जिंदगी की रोटी, दुनियावी तो रूहानी रोटी। और किसी की बच्चे ने मिसाल की सीखा, ईमान सीखा, माना ने दिता यीशु, हालेलुया। खुदा ने उनको आजमाया, हाँ, कि ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो जब उन्होंने ये देखा कि इसने रोटियां बना ली तो उन्होंने एक बात कही कि ये फी अल हकीकत एक बड़ा नबी है जो दुनिया में आने को है, आमीन, हालेलुया। आज का लेसन भी यही है कि हमने खुदा पर ईमान रखना है, हमने खुदा को अपना आप देना, अपना दिल देना है। जो कुछ भी आपके पास है आप खुदा को दें ताकि खुदा उसे अपने जलाल के लिए क्या करे, इस्तेमाल करे, आमीन। अगर खुदा ने आपको पैसा दिया है, आपके पास कम है, थोड़ा है, 5 रोटियां थी, उसके 5 और 2 मछलियां थी, खुदा ने उसे क्या की, बरकत दी, मल्टीप्लाई कर दिया, आमीन। तो आप खुदा को ज़रूर दिया करें, ना सिर्फ पैसे से बल्कि अपना वक्त भी खुदा को देना। अपनी अगर खुदा ने आपको कुव्वत दी है तो कुव्वत भी अपने खुदा को दे, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम दुआ करेंगे। इस कलाम को आप घर जाकर ज़रूर रीड करें, इस हवाला को, यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 6 को ज़रूर पढ़ें। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो खुदा का बहुत ज़्यादा बरकत देगा, आमीन। तो आइए खुदा का शुक्र अदा करें ज़िंदगी की रोटी के लिए जो आज हमने खाई है, जो यीशु ने हमें दी है, और ये ज़िंदगी की रोटी यीशु मसीह का पाक कलाम है। आइए खुदा का शुक्रिया अदा करें। हालेलुया, 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 प्रेज़ जीसस, हालेलुया। मसीह में बुजुर्ग आसमानी खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदा तू भला है, ऐ खुदा तू कुदरत वाला है। हमने तेरे कलाम से सीखा है, ऐ खुदावंद तूने हमें नाम बनाम बरकत दी है। हम जिस्मानी रोटी के लिए नहीं बल्कि ऐ खुदावंद हम रूहानी रोटी के लिए तेरे घर में इस हैकल में आए हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदावंद तेरा खादम तेरे बच्चों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए तेरी बरकत चाहता है। दुआ करता खुदावंद बना छू और बड़ी बरकत दे। इनके दिल की ख्वाहिशें मुरादें यीशु नाम से पूरी कर दे। ये ईमान के मानी काबिल करने वाले यीशु को नजर रहे। ऐ खुदावंद तेरा खून इन्हें आज़ाद करे। तमाम बंधन और जुबे टूट जाएं, जो अबलीस के भस्म हो जाएं। तेरे लोग इसमें बढ़ते और तरक्की करते जाएं। इनकी बीमारियां और कमजोरियां खुदा बाप, बेटे, रूह के नाम से जाते हैं। तेरे रूह की आग से ये ममूर हो जाए, तेरे रूह के मसा से ममूर हो जाए और ये बरकत पाए यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदा बाप और बेटे रूह के लिए हम जोरदार तालियां जाएंगे।
इसी तरह हमारे